व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और इसे ब्रिज क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल इट ए ब्रिज, इसको थोड़ा सोचिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? बेसिकली देयर आर 4 आर्म्स ऑफ द रजिस्टर्स P, Q, R and S. They are arranged in such a manner that this point is A, this is B, this is C and this D. A and C are connected with battery यानी source, voltage source, and B and D are connected with the galvanometer. And these are the 4 arms of the resistors. So applying Kirchhoff's law in the first loop or mesh, junction rule I have already applied, because if it is I current is flowing from this, let us say it is I1, then according to junction rule here it is to be, this should be equal to this and this. So this should be, if it is I, then I1 में से I1 चला गया तो I minus I1. Similarly here इधर I1 आ रहा है, इधर से अगर I3 IG चला गया तो इधर क्या होगा, I1 minus IG. अब यहाँ से क्या आ रहा है, IG, यहाँ से I minus I1, so here it will be I minus I1 plus IG. ये घर में आपके घर में भी जैसे वाटर पाइप लाइन आ रही है, तो ये मेन वाटर पाइप लाइन आ रही है, इसमें से इधर किचन में चला गया तो बाथरूम में किधर ना जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। वहाँ अगर बाथरूम में भी अगर आप जो मेन पाइप चलेगी उसमें इधर वॉश बेसिन में चला गया, उधर जो है गीजर में चला गया, तो ये वॉश बेसिन का है माइनस गीजर में जो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। जंक्शन रूल यही है आपका। अब मैश रूल में देखें तो मैश नंबर 1, सो मैश 1 में क्या है, वी आर मूविंग दिस वे, सो दिस इज I minus I1 into R minus, because we are going against, so IG into G, and again minus I1 into P equals to 0. तो हमने कहा EMF कितना है, 0 लगा हुआ है, तो EMF को अगर हम इक्वल टू में लेते हैं तो जिधर डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेनी है और अगेंस्ट वाले को नेगेटिव लेना है। अगर ये 0 माइनस में E माइनस करता तो ये माइनस करके ऑटोमेटिकली प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो IR माइनस I1 अगर देखें तो क्या है, R प्लस P माइनस IG into G equals to 0. So here you can say IR equals to I1 R plus P plus IG into G, equation number 1. अब mesh number 2, if we say the mesh number 2 is this one. Again the EMF is 0 here. So in mesh number 2, we are moving this way. So IG into G plus I minus I1 plus IG into S, and then we are moving against. So against will be minus I1 minus IG into Q equals to 0. Now here IS minus I1 इकट्ठा करें तो just S and Q। नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा देखें, समझाएंगे। फिर यहाँ पर आएगा IG, here IG is G, then here it is plus S, and then this minus will plus Q equals to 0। एक बार फिर से चेक करें, इसको ओपन करते हैं तो IG, this will be I into S minus I1 into S plus IG into S minus I1 Q minus minus plus IG into Q। तो IG के क्या हो गया, G प्लस S प्लस Q, तो ये आ गया। और माइनस I1 के साथ क्या है, S और Q, तो माइनस I1 के साथ S प्लस Q आ गया। अब इसको हम देखें, सो दिस विल बी IS इक्वल्स टू I1 S प्लस Q माइनस IG इंटू G प्लस S प्लस Q, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं अंडर ब्रिज कंडीशन। अंडर ब्रिज कंडीशन
और इक्विलिब्रियम IG यानी null deflection, you can say null deflection. When there will be equilibrium, so no current will flow through this. Under bridge condition, this IG will be 0. That means when this IG is equal to 0, so equation number 1 will become IR equals to I1 into R plus P, that is equation number 3, and equation number 2 will become IS equals to I1 into S plus Q, equation number 4. एक बार फिर से ध्यान देंगे, अंडर ब्रिज कंडीशन यानी इक्विलिब्रियम जब इसमें होगा तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. So the equation number Ig will be equal to 0. Then IR equation first will become IR will be equal to this portion will become 0. Then IR equal to I1 into R plus P. IR is equal to I1 R plus P. Similarly, equation number 2 will become IS equal to I1 S plus Q. IS will equal to I1 S plus Q. ये सारा कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा. Now dividing equation number 3 by equation number 4. 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो by dividing equation number 3 by equation number 4 क्या मिलता है कि I से I कट जाएगा, you will get R by S is equal to यहाँ से I1 से I1 कट जाएगा, R plus P upon S plus Q. ध्यान से देखें, दोनों को डिवाइड कर दिया, I से I कैंसिल हो गया, R to S इज इक्वल टू I से I1 से I1 कट गया, तो R plus P अपॉन S plus Q आए. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RS plus RQ इज इक्वल टू SR plus SP. RS और SR एक ही चीज है, so here you get RQ is equals to SP. So that means R by S is equal to P by Q. So this is the condition for Wheatstone bridge. जब कभी आपके पास कुछ रेजिस्टेंसेस दिए हैं ऐसे, और ऐसे कोई रेजिस्टेंस दिए हैं 2, 4, 1, 2, 5, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A से B के बीच. इसमें ध्यान से देखें, if the ratio of these two is same as the ratio of this or ratio of these two is same as this, कैसे भी कर सकते हैं आप. ये नहीं कि यहाँ से यहाँ से ऐसे नहीं करना, लगातार दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस करके देखें, 2/4 और यहाँ 1/2 तो सेम है, तो ये है, या दिस बाय 2/1 इज इक्वल टू 4/2, तो दैट इज आल्सो करेक्ट. तो जब ऐसा होगा, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस. दैट मीन्स in this case you can remove this resistance and now these two will be in series, these two will be in series, and then you can have a parallel. So here it is 6 and here it is 3, and so the resultant answer will be 1 by R equals to 1 by 6 plus 1 by 3, that is 6, 1 plus 2, that is 1 by 2, so R equal to 2 ohm. So यहाँ से 2 ohm आ जाएगा आराम से ऐसे करके. तो जब कभी भी इसको, then what is the condition for the ID to be 0 or for the bridge condition? The ratio of these two should be equal to ratio of these two, या ratio of this by this should be equal to this by this. तो ये रेशियो जब ऐसा होगा तो उस समय इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो उसको आप डिटैच कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, उसका कोई यूज नहीं, हटा सकते हो. तो देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आराम से निकल जाएगा, जैसे आपको ये अभी बताया. तो ऐसे इसके यूज करने हैं. और अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहला है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज. दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स. ये थोड़ा जानकारी के लिए आपको ये पढ़ना है, मीटर ब्रिज ही करना है, बाकी उसको दूसरा नहीं करना, लेकिन फिर भी देखेंगे उसको. आप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. एंड व्हाई द नेम इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऐसा नाम क्यों दिया उसको? सो दिस इज द कंडीशन.
एंड व्हाट इज दिस सेंसिटिविटी? अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? दिस ब्रिज इज नथिंग बट we can use this bridge as a tool to find the value of an unknown resistance. मान लीजिए आपके पास 1 2 3 रेजिस्टेंस आपके पास नोन है, ये चौथा एस कैसे निकल जाएगा? यू कैन फाइंड एस इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। तो यहां पर आप रेजिस्टेंसेस को अप्लाई कर रहे हैं और इस तरह सेट करें कि इसके अंदर करंट जीरो आ जाए। तो जिस समय करंट जीरो आ जाए उस समय आप क्या करेंगे? एस की वैल्यू जो है वो क्या होगी? क्यू बाई पी इंटू आर हो जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई 3 आपको दे दिए और तब आप एक निकाल रहे हो, इसलिए उसको मॉडिफाइड फॉर्म किया गया। इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है, दी जाते एप्लीकेशन है मॉडिफाइड फॉर्म्स है ये, कि उसने कहा एक नॉन रेजिस्टेंस तो उसी से हम निकल जाएंगे, तो मीटर ब्रिज बन गया और पोस्ट ऑफिस बॉक्स बना दिया। तो दिस वे अब ये चूंकि मेजरिंग एपरेटस हो गया तो इसकी सेंसिटिविटी भी होगी। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ दिस ब्रिज इज गोइंग टू बी डिपेंड। सो फॉर व्हाट इज द कंडीशन फॉर sensitivity of Wheatstone bridge? ये थोड़ा सा आप इसको जज करने की कोशिश करें, पता करने की कोशिश। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं मीटर ब्रिज वगैरह में तो वहां पर प्रीकॉशंस कुछ लेते हैं, उससे भी हिंट मिलेगी आपको। तो प्रीकॉशंस क्या होती हैं वो भी इसकी सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए आप यूज करते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे और माइंड को जो यूज करके देखेंगे कैसे ये ऐसा हो रहा है। तो कोशिश करें, अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है लिखें सर ये समझ नहीं आया, इसको फिर से एक बार बता दें, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। जब भी आपको वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कोई समस्या आपकी, वो समस्या आपकी रिमूव हो जाएगी। और पढ़ाई जरूर करें, सेल्फ स्टडी जरूर करें।